Assalamualaikum class, welcome back to the class. I hope you people are doing great and fine. Please switch off your cameras and each and everything. So class, Walaikum Assalam, Muhammad. Thank you so much for the greetings. Yesterday we were discussing the definition of phrase and we were going through some of the important types of the phrases. Please let me know that how many types basically we had covered. Walaikum Assalam. Okay, which one? Walaikum Assalam. Okay, class. So all those who are going for the improvement exams, these types of the phrases and clauses are also important there. So you need to understand them. Walaikum Assalam. Okay, so a positive, absolute, and infinitive phrase. Okay, class. So starting with the gerund phrase today. Class, excuse the background noise today because I'm in Willis today. So you people can better understand the scenarios over there. Okay, class. So gerund phrase, basically the structure of the gerund phrase is that के it include your gerund. ठीक है, तो सबसे पहले तो let me ask you people कि what do you think about gerund? कुछ पता है gerund के बारे में? ओके क्लास, so basically gerund आपका ing फॉर्म होता है. Let me set the board. Okay. So gerund is also called as a verbal noun class and it's always like in an ing form. It can happen in the start of the sentence. For example, we can say that smoking is injurious to health. Acting as the subject of a sentence, it may happen at the end of a sentence. For example, I like reading. So reading there is basically an example of a verbal noun or a gerund. Gerund is also called as a verbal noun. Most of the time, the options given in the paper, they include verbal noun. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि जेरिन को वर्बल नाउन भी कहते हैं हम. और अगर किसी स्टूडेंट को लाइक इफ ही और शी इज फेसिंग कॉम्प्लिकेशंस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेरिन, so you need to translate that specific sentence into Urdu. If the sentence is giving you a noun, so it means that is your gerund. For example, if I say that I like reading, मुझे रीडिंग पसंद है, इट इज गिविंग, या मुझे मुताला करना पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मुताला कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ. सो इट इज गिविंग यू अ नाउन, सो इट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ अ gerund. Gerund phrase में what is basically the structure of gerund phrase? It of course includes gerund, but not only the gerund.
It includes the basically modifier. Along with that, it also includes an object as well. So in this specific sentence, your group of words swimming in the ocean becomes the example of gerund phrase. Why we are calling it as a gerund phrase? Because it is basically talking about gerund. Along with that, it is also talking about your modifier, which is the, in the form of article, and it is also like including an object as well. In the second sentence, we have the example of gerund phrase which says he enjoys playing cricket. So now in this sentence, इस sentence का मतलब ये नहीं है कि he is playing. It means कि उसे खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद है. उसे क्या पसंद है? उसे क्रिकेट खेलना पसंद है. Giving you a noun. So it means कि playing cricket, playing तो आपका gerund है और उसमें से आप लोगों ने object भी basically include करना है. So playing cricket becomes the example of gerund phrase. Why we are calling it phrase? Because if we ignore these group of words, playing cricket, not giving us a complete sense, it is giving us an incomplete sense. So it becomes the example of phrase. And on the whole, it becomes the example of gerund phrase. Got it? So now class, I am saying some sentences. You people need to tell me the gerund phrase in those sentences. Okay, so the first sentence is, let me think. So the first sentence is, he dislikes waiting for buses. He dislikes waiting for buses. No, you only, not only you have to include the gerund, you have to include the modifier and the object. Okay, ठीक है. So waiting for buses is the correct option. Answer, sorry. Next sentence is, running every morning keeps him fit. Running every morning keeps him fit. ठीक है जी, good. So running every morning is the correct answer. Next sentence is, she enjoys reading novels. Okay, Talha, good. Maham, good. Reading novels. ठीक है जी, good. Okay, so the last sentence for it is, playing cricket is my favorite hobby. Playing cricket is my favorite hobby. ठीक है. So I hope कि आपको समझ आ गई है class. Any question? No? Got it? Ji, Maham, you are having any question? Yes, this is the very rest reality. Like, I'm not, praising myself, or like I'm not appreciating my efforts. Basically, why we are discussing it in a very detailed manner, that they are very, very important, related to your own exams, and then after your exams when you are going for any entry tests. And secondly, one thing that I have observed, like last year, is that in your college, like, they do not teach you the types of phrases and clauses in a very detailed and in a comprehensive manner. So you need to understand these things, and if you do not get anything, you need to stop me there and then, because they are very important. ये आपके 4 to 5 marks, अक्सर ऑब्जेक्टिव पेपर कभी कभार सेकेंड ईयर का बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, और उसमें 4 to 5 जो है ना, उन्होंने phrases और clauses दिए होते हैं. And then students are always like, they are raising the questions कि पेपर बहुत मुश्किल है, मुश्किल था या मुश्किल है. So this is like considered to be like 30 to 35%. It carries the percentage of your objective paper. So you need to understand them in a very good manner. सेकेंड सेंटेंस में मॉडिफायर कहाँ है? सेकेंड सेंटेंस में मॉडिफायर कोई यूज नहीं हुआ. आइडेंटिफाई की कोई टेक्निक है? आइडेंटिफाई का स्ट्रक्चर मैंने आइडेंटिफिकेशन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बाद में बता दिया है कि आप उसमें, आप अगर जेरेंड फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन पूछ रही हैं तो उसमें जेरेंड होगा और मॉडिफायर होगा. मॉडिफायर का मतलब है कोई आर्टिकल,
या कोई एडजेक्टिव। आर्टिकल भी हो सकता है, एडजेक्टिव मॉडिफायर का वर्ड मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को, और उसके साथ साथ आपका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। बाकी क्वेजेस में मैं आप लोगों को दूंगी तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज पार्टिसिपल क्लास। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल so this is now basically modifying your water. ठीक है, along with the article the, it is further modifying your noun, sorry, object. So हम इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एग्जाम्पल लेंगे एज अ gerund phrase। ठीक है, ठीक है जी, ओके। ओके क्लास, सो द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज पर जाने से पहले लेट मी टेल यू द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This participle basically has two types. The one is the first form of the verb plus ing, and the second one is like the regular verbs। रेगुलर वर्ब्स आ जाते हैं जिसके लास्ट में आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, ईडी और डी आता है। और इरेगुलर वर्ब्स भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। अब जो आपका पार्टिसिपल फ्रेज होगा उसपे या तो हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा, ऑफ कोर्स फिर हम दोबारा मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट भी उसमें इंक्लूड करेंगे। ये भी एक हो सकती है टाइप। एक टाइप आपके पास वो भी हो सकती है, अभी हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, कि या तो आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो सकती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो सकती है, इरेगुलर वर्ब्स यूज होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स का मतलब है कि जिन वर्ब्स के लास्ट में जब उनको हम पास्ट पार्टिसिपल में फॉर्म करते हैं तो उनके लास्ट में हम ईडी और डी की यूसेज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ईट, एट, ईटन। ठीक है, राइट, रोट, रिटन। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा और ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब पार्टिसिपल फ्रेज में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इनकी एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्पोक, ओ सॉरी सॉरी, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। थैंक यू फॉर द करेक्शन। अच्छा जी, ये किसका क्वेश्चन है? शिजा, ओके शिजा, लेट मी गो थ्रू योर क्वेश्चन। मतलब है कि if there is a word yes modifying the object, it will be considered as gerund phrase. Instead of studying hard, studying smartly will let you as your exams. The bold one is gerund phrase. Yes, it is example of your gerund phrase. ठीक है, okay, okay class, so coming towards your participle phrase। So participle का structure क्या होगा क्लास? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस इज कि ये आपके पास पार्टिसिपल होता है, ये आईएनजी फॉर्म में भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, अभी हम सेंटेंसेस में देखने जा रहे हैं। अलोंग विद दैट इट मे इंक्लूड योर ऑब्जेक्ट एंड द मॉडिफायर एज वेल। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव ये वर्क कर सकता है।
कैसे करेगा वो अभी हम सेंटेंसेस में देखने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज द मैन wearing a red shirt is my uncle. ठीक है. द car parked outside is mine. Plus, now if we talk about and discuss about these two sentences, it may contain Zoha, but like then it becomes a very complex type of sentence, but it may contain. Okay, so structure is participle plus object plus modifier in the form of an adjective. Like if we go through the first sentence says that the man wearing a red shirt. इसमें आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है वेयरिंग. ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म आ गई है इसकी. मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट प्लस एन एडजेक्टिव. आर रेड शर्ट, रेड इज बेसिकली मॉडिफाइंग योर शर्ट. और ऑन द होल ये द मैन वियरिंग अ रेड शर्ट, बेसिकली ये होल फ्रेज मॉडिफाई करी आपके द मैन को. रेड रेड तो मॉडिफाई कर ही रहा है शर्ट को, लेकिन ये जो पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रहे हैं आपके नाउन को. सो बिकॉज वी हैव द आईएनजी फॉर्म एंड वी हैव द adjective as well and we have an object as well, so it becomes the example of participle phrase, present participle. ज्यादा अगर आप स्पेसिफिक करते हैं इसको. लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें, द कार पार्क आउटसाइड इज माइन. So now we do not have ing form, but as I have discussed that your participle may happen or may include your past participle as well. तो ये जो parked है, the car parked outside is mine. इसमें what do you people think? इसमें अब आपके पास participle phrase कौन सा है? इसमें जो एग्जाम्पल है ना पार्टिसिपल फ्रेज की, वो पार्क एंड आउटसाइड किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? किसको मॉडिफाई करें? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेसिकली आपके कार को मॉडिफाई करें कि वो जो कार जो बाहर बेसिकली खड़ी हुई, ठीक है, वो मेरी है या वो किसी और की है. सो एज एन एडजेक्टिव ये वर्क कर रहे हैं. नो, नॉट ओनली कार, आप लोगों ने पार्टिसिपल को भी तो इंक्लूड करना है ना. ईडी फॉर्म को भी तो आप लोगों ने इंक्लूड करना है, जो कि मेन टास्क है हमारा. हमने सिर्फ, अच्छा फिर क्लास आप लोगों ने जो जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ना, फॉर एग्जांपल पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल फ्रेज है, तो वो पार्टिसिपल फ्रेज पार्टिसिपल से ही स्टार्ट होगा. प्रेपोजिशन फ्रेज अभी हम देखने जा रहे हैं, तो वो प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होगा. आपका जो जेरेंट फ्रेज था वो जेरेंट से ही स्टार्ट हो रहा था. अगर आप लोग कहेंगे कार, सो कार इज नॉट अ पार्टिसिपल, इट इज अ नाउन. ठीक है. एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ भी हम आते हैं, उसमें हम एक नाउन भी ऐड करते हैं. ठीक है, वो जब पढ़ने के बाद फिर आपको समझ आएगी. अच्छा ओके, सो नाउ लेट मी से सम सेंटेंसेस. ठीक है, उसमें आप लोग ट्राई करें आइडेंटिफाई करने की. फिर अगर आपको समझ नहीं आती, सो यू नीड टू आस्क मी. So the first sentence is the book written by Shakespeare is famous. The book written by Shakespeare is famous. Written by, पूरा पूरा लिखे हैं, written by. ऑब्जेक्ट को भी तो ऐड करें ना क्लास. किसकी किसकी बुक है, किसने लिखी है? रिटन बाय शेक्सपियर. ठीक है, बेसिकली ये आपके बुक को मॉडिफाई करें. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस, लेट मी थिंक. The boy crying loudly needs help. The boy crying loudly needs help. The boy crying loudly. ठीक है, needs नो, सिर्फ आपका इसमें पार्टिसिपल आएगा.
और एडजेक्टिव आएगा, नीड्स हेल्प नहीं आएगा। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल स्टैंडिंग एट द डोर इज माई सिस्टर। द गर्ल स्टैंडिंग एट द डोर इज माई सिस्टर। ठीक है जी, स्टैंडिंग एट द डोर जी। अब ये जो पूछ रहे हैं कि मैम फ्रेज कैसे हुआ है, ये दोबारा क्वेश्चन पूछे। और तलहा आपने द बॉय को क्यों ऐड किया है उसमें, फर्स्ट सेकंड वाले सेंटेंस में आपने नाउन को उसमें क्यों ऐड किया था तलहा? और ये क्वेश्चन किसका था? सो मैम फातिमा। फातिमा आप कौन से वाले का पूछ रही हैं, दोबारा पूछें। इट्स हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन समझ आ गई है तलहा आपको भी? अच्छा जी। हम्म। द बॉय क्राइंग लाउडली नीड्स हेल्प। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैंने पूछी है बाय द वे क्लास। एक तो आप लोगों को मैंने बताया है कि जो फ्रेज जिस फ्रेज का नेम होगा ना वो उसी उसी वर्ड से स्टार्ट होगा। मतलब कि पार्टिसिपल फ्रेज है तो क्राइम। ठीक है, हमने ये इसको इसमें नाउन को इंक्लूड नहीं करना। नाउन को इंक्लूड करेंगे तो लाइक इट वुड बी सम हाउ द एग्जाम्पल ऑफ योर नाउन फ्रेज। ये बात आप लोग, जेरेंट फ्रेज है जेरेंट से स्टार्ट होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज है प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, वर्ब फ्रेज है तो वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेजेस आर लाइक दैट। सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि मैम इसमें हमने नीड्स हेल्प को क्यों नहीं इंक्लूड किया, व्हाई वी आर ओनली इंक्लूडिंग क्राइंग लाउडली। हमारे पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या था, वो ये था कि पार्टिसिपल इंक्लूड होगा और एडजेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफायर यूज होगा, मेन वर्ब यूज नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये जो नीड्स है ना ये मेन वर्ब है, इसलिए हमने इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बेसिकली सिर्फ इंक्लूड किया है आपके क्या कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज में। नहीं, जेरेंट फ्रेज और प्रेजेंट पार्टिसिपल डिफरेंट है। आप लोगों को इसमें डिफरेंस बताऊं क्लास, जेरेंट और पार्टिसिपल में, इफ यू पीपल वांट टू नो। ओके, so let me go through that then. नो, ओनली क्राइंग लाउडली। क्योंकि तला हमने बात की है ना कि उसमें मेन वर्ब इंक्लूड नहीं होगा, वर्ब की हमने बात ही नहीं की, हमने सिर्फ पार्टिसिपल की बात की है, एडजेक्टिव की बात की है कि वो बहुत जो है ना ऊंची आवाज से रो रहा था। तो ऊंची आवाज को आपने इंक्लूड करना है और रोने को आपने इंक्लूड करना है। ठीक है, नीड्स को आपने इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये आपका मेन वर्ब है। यस माहम, दैट इज व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग राइट एट द मोमेंट। ठीक है, आपने सिर्फ पार्टिसिपल में इंक्लूड करना है अपना आईएनजी फॉर्म, ईडी फॉर्म, अलोंग विद दैट कोई एडजेक्टिव। मेन वर्ब आप लोगों ने इंक्लूड नहीं करना। कोई क्लास, सो यू पीपल आर लाइक gerund and participle. These two are different things basically. Gerund is also called as your verbal noun, participle is participle, but they both basically happen in ing form. मैम हमें कैसे पता चलेगा फिर कि जेरेंट कौन सा है और पार्टिसिपल कौन सा है? ठीक है, जेरेंट जो है आपका क्लास, इट इज ऑलवेज वर्किंग एज अ नाउन, पार्टिसिपल इज ऑलवेज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। इनके एग्जाम्पल्स में जाने से पहले, ठीक है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस आता है, आप लोग बेशक लाइक लीव दिस इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, यू नीड टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इनटू उर्दू। जब तक आप अपने साथ लगे रहेंगे ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो आईएनजी फॉर्म जेरेंट सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा। आप लोगों ने उन सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद आप लोगों का कभी भी जेरेंट और पार्टिसिपल गलत नहीं हो सकता, फॉर अ रीजन। जेरेंट का बेसिकली प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि जेरेंट हमेशा आपके सेंटेंस के स्टार्ट में हो। ये इसकी तीन पोजीशंस हैं क्लास। द फर्स्ट वन इज इट मे हैपन एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज माय हॉबी।
ठीक है. It may happen as an object. For example, I like swimming. It may happen after a preposition as well. For example, he is good at swimming. ठीक है. अब द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस चैलेंज. अच्छा, जिनको उर्दू नहीं आती, अब मुझे भी उर्दू इतनी खास नहीं आती क्लास, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ. नॉट बिकॉज आई एम वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, बट लाइक माई उर्दू इज़ वेरी वीक. लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आती, सो बेसिकली अगर इंग्लिश में आप लोग कहते हैं, सो इंग्लिश में आपको हमेशा ये वर्ड का आंसर देता है. फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज माई हॉबी. व्हाट इज योर हॉबी? इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आई एम स्विमिंग. आई एम नॉट एक्टिंग. आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन एक्शन. और उर्दू में अगर आप ट्रांसलेट करें तो स्विमिंग जो है वो मेरी हॉबी है. ठीक है, मैं अपने पारे वक्त में स्विमिंग करता हूँ. ठीक है. सो इट इज गिविंग यू अ नाउन. आई लाइक स्विमिंग. मुझे स्विमिंग पसंद है. मैं ये नहीं कह रही कि मैं स्विमिंग कर रही हूँ. ये आपको नाउन दे रहा है, एक इसम दे रहा है. ठीक है. ही इज गुड एट स्विमिंग. वो स्विमिंग में लाइक अच्छा है. मैं ये नहीं कहूंगी वो स्विमिंग स्विमिंग पता नहीं क्या कर रहा है. और ये आपको एक एक्शन नहीं दे रहा. इट इज गिविंग यू अ नाउन and ing form. Secondly, it is working as a subject, it is working as an object, it is working after a preposition. So ये basically gerund की placements हैं. लेकिन आपका जो participle है क्लास, वो भी ing फॉर्म में होता है, लेकिन वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज, मैं यही लिख लेती हूँ, रनिंग बॉयज वर seen in the playground. अब मुझे ये बताएं कि ये रनिंग का क्या आपको लग रहा है कि ये बॉयज को बेसिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव दे रहे हैं एक? यस, दे वर द एग्जांपल्स ऑफ जेरिन फ्रेज, लेकिन स्पेसिफिकली मैं जेरिन की बात कर रही थी. जी क्लास, so I am asking you people, let me know, do you people think this word running is modifying your voice? ठीक है, डिस्क्राइब करें. जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव आपकी हमेशा ऐसी हो कि जी लाहौर इज अ वेरी लार्ज सिटी. ठीक है. एंड यू नो शी इज वेरी प्रिटी. एडजेक्टिव्स आपके आईएनजी फॉर्म में भी हो सकते हैं. और इफ यू पीपल कैन गो थ्रू दिस सेंटेंस, क्योंकि पार्टिसिपल की तो टू टाइप्स हमने पढ़ी है ना. सो ब्रोकन विंडो इज द प्रूफ ऑफ मर्डर. Let me know that do you people think this can be the example of your participle broken, the word broken? Yes, because it is not in the ing form, but this word is modifying your window. So participle may happen in two forms. It may happen in ing form, it may happen in your this form, regular and irregular forms. ठीक है, समझ आ गई है? Okay, so who is asking this question? जी मैम, but in the some cases it's very difficult for us. A question for us to identify how it's a partially understanding at the here tongue. ये Muhammad, can you send your question again because I cannot see it. उसके बाद किसका question है, like send it again please. I'm waiting. क्लास जेरिन और पार्टिसिपल में आप लोगों को समझ आ गई है? Any question?
Okay. Mohammed, have you sent? Because I cannot see it. Okay, so now I got it. Okay, wait, let me go through the questions. Standing at the gate. Okay, let me explain it. So class, very interesting question by the way. And these type of the phrases are mostly like there in your exam with a little bit of confusion. Such types or such group of words are class underline most of the time. ठीक है इस दफा भी आया हुआ था like if I'm not wrong second year के पेपर में. So they ask you that either it is your participle or either it is your gerund. This becomes the example of your participle. सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें आप ing को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये participle है, या इसलिए भी नहीं कि आप कह रहे हैं कि जी standing तो हमारा first form of the verb plus ing है, बट बिकॉज ऑफ अ रीजन कि ये स्टैंडिंग एट द गेट बेसिकली आपके ही को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन मतलब कि गिवन है. ठीक है. सो हमने क्या पढ़ा कि पार्टिसिपल आपके, और जरूरी भी नहीं है कि जो है ना वो सेंटेंस के लास्ट में हो. पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं. ठीक है. तो वो एक तो पार्टिसिपल है आपका एनजी फॉर्म वाला जो हमने पढ़ा ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला, वो तो पार्टिसिपल है. बट इट इज आल्सो एक्टिंग एज पार्टिसिपल एज इन एडजेक्टिव. वो इसलिए क्योंकि आपकी ही के बारे में एक्स्ट्रा, क्यों गेट पर खड़े होते हुए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और उसके आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. सो इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ योर पार्टिसिपल. ठीक है. आई होप नाउ इट इज क्लियर. इट इज नॉट जेरेंट. गॉट इट. तो क्लास व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेंटेंस, ये भी अक्सर आ जाता है. जी गुड मॉम. बीइंग नाइस. हाँ बीइंग नाइस टू एवरीवन. ही वन द रेस. इसका मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन. सोच के बताएं क्लास. ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू. ट्राई टू गेट द मीनिंग, द क्रक्स, देन लेट मी नो विद अ रीजन एज वेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन योर आंसर विद रीजन दैट व्हाई यू पीपल आर गोइंग. बस इसको ना देखेंगे आईएनजी है तो ये पार्टिसिपल हो गया. गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर.
Okay, G. So coming towards your answers, participle, ma'am, because ma'am being nice to everyone modifies he, that is why it's a party. Can तलहा? अच्छा जी, तलहा के बाद कौन कह रहे हैं जी? हम ठीक है. It's Jaren because it act as a noun and subject. ठीक है. Being is participle because it is modifying everyone. It is modifying everyone or it is modifying he. It's Jaren. Abnaish, why? Why are you going for Jaren? क्लास ओके, आई एम गेटिंग द थिंग. जो जेरेन के लिए जा रहे हैं उनको लग रहा है कि जी ये तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें. ठीक है. आई लाइक व्हेन आई केम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम माय आंसर वाज द सेम, जेरेन. मुझे लगा था कि ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. बल्कि मेरा तो गलत भी हो गया था. ठीक है, मैंने भी ये जेरेन पे ही चूज किया था मैंने. आई डोंट नो इन विच एग्जाम्स बट लाइक आई डोंट रिमेम्बर. But it is basically your participle because this group of words basically is modifying your he. एक क्वालिटी बता रहे हैं आपको. ठीक है. और जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपल सिर्फ आपका एक वर्ड हो. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन मॉडिफाई योर नाउन, प्रोनाउन. ठीक है. सो इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ योर पार्टिसिपल. गॉट इट? बहुत डिटेल में क्लास पढ़ ली है आज हमने तो. इसके बाद भी अगर आप लोगों का पार्टिसिपल फ्रेज और जेरेंट फ्रेज गलत हुआ ना, फिर आप लोगों. ठीक है. ओके सो अच्छा. ये क्लास थोड़ा सा इजी कर लेते हैं आप. बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 hours, so I am having tongue twist today. Verbal phrase. Verbal phrase class, the structure of verbal phrase is that it includes your helping verb. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. दिस इज वेरी इजी बाय द वे. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. This is the easiest way to identify your verbal phrase. For example, if I say that Talha is writing a story. ठीक है. Maham should enjoy rain. ठीक है. Abnaish has been crying since morning. So class, go for the answers. Yes, of course, food I will be providing. लेकिन मैं 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारों के नोट्स कंपाइल कर रही हूँ तो आपको लाइक नेक्स्ट वीक में ही मिलेंगे. बट शॉर्ट नोट्स आप लोग अपने साथ अपने पास बना सकते हैं. अच्छा जी मैम, ऐसा है क्या? जजाकल्ला. ठीक है क्लास. सो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर सही बताए हैं. ठीक है. वर्बल नाउन वर्बल फ्रेज का सिर्फ ये नहीं मतलब कि आप उसमें सिर्फ वर्ब को इंक्लूड करें. आप लोगों ने मेन वर्ब को भी इंक्लूड करना है. दिस शुड इज योर मॉडल वर्ब बाय द वे. आई रोट इट फॉर इंटेंशनली बेसिकली. ठीक है. ओके क्लास, में आप लोगों के साथ एक और लिंक शेयर करती हूँ. आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम आज फ्रेजेस की टाइप्स कर रहे हैं. ठीक है. कुछ 2 3 ही रहते हैं. ठीक है. ओके. आप लोग ओके नहीं भी बोलेंगे तो मैंने तो ज्वाइन वो सेंड करना है. ठीक है, मैं भेजती हूँ क्लास. नो. नो. लेट मी नो देन वी कैन डू इट टुमारो. चले सही है क्लास, हम कल कर लेते हैं. ठीक है. एंजॉय योर सेल्फ. ठीक है. ठीक है. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर देन.